Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our today's topic is kidney failure, and this topic is taken from class 9th Hyderabad board and chapter number 11 of class metric federal board, chapter number 1 of class 2nd year Hyderabad board, and chapter number 15 hemostasis from class 2nd year federal board as well. So this topic is taken from all of the classes: 9th Hyderabad board, metric federal board, 2nd year Hyderabad board, and 2nd year federal board as well. This topic is very important, so I request you all kindly to pay attention and listen carefully. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define kidney failure, describe the signs and symptoms, causes and effects, and treatments of kidney failure, and distinguish between peritoneal dialysis and hemodialysis. So let's start our topic. Kidney disorder. What does it mean by kidney disorder? A general term for declined kidney function, particularly the efficiency of the filtering process, is called kidney failure or renal failure. A condition in which the kidneys stop working and are not able to remove waste and extra water from the blood or keep body chemicals in balance. देखें, ये वो कंडीशन है जिसमें किडनी जो है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, और किडनी का फंक्शन क्या है? टू फिल्टर दी ब्लड. ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन की प्रोडक्शन करना. जब किडनी अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, वो वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव ना कर पाए, केमिकल्स को बैलेंस ना रख पाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? किडनी डिसऑर्डर और द किडनी फेलियर और रीनल फेलियर. ठीक है, किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन. किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनीज या तो कम्प्लीटली हमारी खराब हो चुकी हैं या फिर वो पार्शली खराब हुई हैं, वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही. और जब ऐसा होता है तो क्या किया जाता है? किडनीज की ट्रीटमेंट की जाती है, या तो डायलिसिस की जाती है या फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है. एंड वी विल डिस्कस दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल इंशाल्लाह. Now, what are the types of kidney failure? Actually, there are two types of kidney failure. Number one is the acute kidney failure and number two is the chronic kidney failure. Acute kidney failure क्या होता है? Which develops rapidly and may resolve. ये kidney failure जल्दी हो जाता है, rapidly होता है, और ये resolve भी हो सकता है. मतलब इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, ये resolve भी हो सकता है medications के थ्रू. नंबर 2 है हमारे पास क्रॉनिक किडनी फेलियर. क्रॉनिक किडनी फेलियर ये स्लोली होता है, डेवलप स्लोली होता है, और इसमें पेशेंट को रिकवर करते करते काफी साल लग जाते हैं. एंड इट इज पॉसिबल कि ये इरिवर्सिबल हो, वो कभी भी रिकवर ना कर पाए पेशेंट. ठीक है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है. Chronic failure is irreversible deterioration in renal function. देखें, जो chronic failure होता है, जो chronic kidney failure होता है, ये irreversible deterioration है. मतलब किडनीज बिल्कुल वर्स कंडीशन में आ जाती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट कभी भी रिकवर ना कर पाए. फाइन. Now, what are the causes of kidney failure? देखिए, दो जनरल कॉजेज हैं. सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी. अगर किडनी को ब्लड सही तरीके से ना सप्लाई हो रहा हो तो इट कैन कॉज किडनी फेलियर. ठीक है. नंबर 2 है ड्रग ओवरडोजेज. अगर ड्रग बहुत ज्यादा ले ली जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले ली जाए, ओवरडोज कर लिया जाए, तो उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि क्रॉनिक रेनल फेलियर के क्या कॉजेज हो सकते हैं और अक्यूट रेनल फेलियर के क्या कॉजेज हो सकते हैं. Chronic renal failure may be caused by bacterial infection of the pelvis and surrounding tissues. ऐसा हो सकता है कि pelvis में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या जो उसके सराउंड जो टिश्यूज होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इट कैन कॉज रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर विच कैन बी इरिवर्सिबल. ठीक है. नेफ्राइटिस हो सकता है एक कॉज इसका. नेफ्राइटिस क्या होता है? ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन. ठीक है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होती है. नाउ अक्यूट रीनल फेलियर के क्या कॉजेज हो सकते हैं? इट मे बी कॉज्ड बाय हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा. अगर कोई एक्सीडेंट हो गया
उसकी वजह से ब्लड हेमरेज हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि किडनीज फेल हो गई हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डायूरेसिस हो सकता है, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, डायूरेसिस मींस एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, अगर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस्ड हो रहा हो तो भी, एंड स्वेटिंग इज ऑल्सो द कॉज ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। देखें, ये जो वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेसिस, स्वेटिंग, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का, ठीक है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्लूइड्स का, वाटर का, तो ये भी अक्यूट रीनल फेलियर का कॉज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, फॉर एग्जाम्पल किडनी स्टोन। देखिए, अगर यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा या इवन किडनी में किडनी स्टोन हो गया है तो इट कैन ऑल्सो कॉज दी अक्यूट रीनल फेलियर। और लास्ट क्या है हमारे पास, सिवियर नेफ्राइटिस, बहुत ज्यादा अगर सिवियर हो गया नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इट कैन ऑल्सो कॉज दी रीनल फेलियर। अक्यूट और क्रॉनिक दोनों रीनल फेलियर नेफ्राइटिस की वजह से कॉज हो सकते हैं। फाइन। Now here are some more common causes of kidney failure. Chronic kidney failure can also caused by diabetes, high blood pressure, heart problems, obesity, family history, tobacco use and the age factor can also cause the renal failure. ठीक है, 60 इयर्स या उससे ज्यादा के जो लोग होते हैं उनको ये किडनी फेलियर हो सकता है, जिनको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो या ओबेस हो, फैटी हो, मोटा हो जाए, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को खुदा ना खास्ता किडनी फेलियर है तो इट कैन ट्रांसमिट इन अस ऑल्सो, ठीक है। टोबैको यूज, देखें, ये एक मेन कॉज है और ज्यादातर लोग जो हैं वो इस टोबैको की वजह से, जो स्मोकिंग करते हैं, ये किडनी फेलियर का मेन जो है ये कॉज है टोबैको, ठीक है, तो काइंडली अवॉइड स्मोकिंग एज वेल। नाउ हियर आर द फ्यू मोर कॉजेज ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर। तो रिसेंट कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया तो इट कैन कॉज द किडनी फेलियर। सर्टेन मेडिकेशंस, अगर कुछ मेडिसिन ली जा रही हैं, अगर ओवरडोज लिया जा रहा है मेडिसिन का तो इट कैन ऑल्सो कॉज द किडनी फेलियर। सिवियर डिहाइड्रेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से भी अक्यूट किडनी फेलियर कॉज हो सकता है। एक्सपोजर टू दी हैवी मेटल्स और दी टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे उनका एक्सपोजर बहुत हैवी मेटल्स के साथ होता है, फॉर एग्जांपल कैडमियम के साथ, मर्क्यूरी, आर्सेनिक के साथ, तो ये भी इनमें किडनी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं, ठीक है, ये हैवी मेटल्स भी किडनी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं, अक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। ब्लड लॉस हो गया किसी शॉक की वजह से तो इट कैन ऑल्सो कॉज दी किडनी फेलियर। फाइन। नाउ व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, हमें कैसे पता चलेगा कि किडनीज फंक्शन नहीं कर पा रही या फेल हो चुकी हैं। द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। इसका सबसे मेन जो सिम्टम है वो क्या है, जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें वेस्ट और जैसे कि कुछ यूरिया और कुछ आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, उनका अमाउंट बहुत ज्यादा आता है ब्लड में, तो ये एक मेन सिम्टम है, हमें पता चल जाता है कि किडनी फेल हो चुकी है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब यूरिया या कुछ अदर जो वेस्ट ब्लड में होती है अगर उनका अमाउंट या उनका लेवल हाई है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, मतलब आपको मतली हो सकती है, ऐसा फील होता है कि हम अभी वॉमिट करेंगे। फाइन। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस में क्या होता है, वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, पेशेंट जो होता है वो वीक होता जाता है दिन ब दिन, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन की नीड होती है, मतलब वॉशरूम की नीड होती है, बार बार यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है और हमें बार बार मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। एंड ब्लड इन यूरिन, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि यूरिन में ब्लड भी मौजूद होता है। फाइन। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर और द रीनल फेलियर। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में ऑल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। देखिए, जब किडनीज ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही हैं तो फ्लूइड्स की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगी, जब ऐसा होगा तो
लेग्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं, टांगे स्वेल हो जाती हैं, फीट स्वेल हो जाते हैं, इवन दो फेस भी स्वेल हो जाता है, फाइन। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी मुश्किल होती है। दीज ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर और दी रीनल फेलियर, फाइन। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ऐसा सिम्टम है, शो हो रहे हैं, तो लाजमी उसको किडनी फेलियर भी हो। बहुत सारी और भी डिजीजेज होती हैं जिनके ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, फाइन, बट दीज आर दी मेजर और दी कॉमन फैक्टर्स और दी सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, फाइन। नाउ कम टुवर्ड्स दी ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी फेलियर। देखिए, जब किडनी फेल हो जाती हैं, ओनली देयर आर टू वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, और वो कौन से वेज हैं? एक है डायलिसिस, या तो हम डायलिसिस करवा लें, एंड द सेकंड वे इज दी ट्रांसप्लांट, कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर लें किसी डोनर से लेके, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस इतने ज्यादा इजी नहीं है, दीज आर वेरी मच पेनफुल, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, फाइन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायलिसिस। किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या है हमारे पास? Dialysis means the cleaning of blood, filter toxins from blood by artificial method when kidneys are unable to perform this function. Dialysis क्या है? ब्लड को क्लीन करना, ब्लड में से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करना, लेकिन these are the artificial methods. ये जो डायलिसिस है ये क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है, क्योंकि नेचुरली जो हमारी बॉडी में ऑर्गन मौजूद है, दीज आर दी किडनीज, वो किडनीज हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लेकिन जब किडनीज बिल्कुल अनएबल हो, फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, ब्लड को फिल्टर ना कर पाए, तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ आना पड़ता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड को क्लीन करने का, फिल्टर करने का, ताकि टॉक्सिन्स को रिमूव किया जा सके ब्लड में से। Dialysis work on the principle of kidneys, although it is not as effective, efficient or thorough as the natural processes परफॉर्म बाय द किडनीज। देखें, डेफिनेटली ऐसा ही होता है, जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद हैं उनका कोई ना कोई पर्पस तो है ना। तो नेचुरली जो ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल मशीन्स परफॉर्म नहीं कर पाती। बेशक डायलिसिस भी किडनीज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, डायलिसिस भी किडनी के प्रिंसिपल्स पर ही काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव हो, इफिशियंट हो, या बिल्कुल एज इट इज किडनीज की तरह ही फंक्शन परफॉर्म कर सके, फाइन। क्योंकि नेचुरल जो चीज होती है वो नेचुरल ही रहती है, और आर्टिफिशियल जो होती है वो आर्टिफिशियल ही रहती है, फाइन। सो ये डायलिसिस किडनी की तरह फंक्शन तो कर पाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव, इफिशियंट या थॉरो नहीं होती, फाइन। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ रीनल डायलिसिस? देखिए, अब डायलिसिस जो है, या किडनी डायलिसिस या रीनल डायलिसिस या सिंपल आप डायलिसिस भी कह सकते हैं, इट इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज दी हेमोडायलिसिस, नंबर 2 इज दी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है एंड हीमोडायलिसिस क्या है, इनका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये फिल्टर करती हैं ब्लड को। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल मेम्ब्रेन इन द बॉडी कॉल्ड द पेरिटोनियम व्हिच इनक्लोज्ड द एब्डोमिनल कैविटी। देखें, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? ये हमारी एब्डोमेन में होती है, हमारे पेट में होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिटोनियम। उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। तो ये कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है। किस तरह से की जाती है? इन दिस प्रोसेस 2 catheters are surgically inserted into the abdominal cavity that serve as the portal any entrance through which dialysis fluid enters and leaves the cavity. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? 2 कैथेटर्स को सर्जिकली हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, एंड दीज कैथेटर्स एक्ट एज द पोर्टल। ये वेज या एंट्रेंस के तौर पे काम करते हैं, जहां से डायलिसेट या डायलिसिस फ्लूइड जो है वो एंटर होता है इस कैविटी में, और यहां से लीव भी करता है, फाइन। क्या किया जाता है? एब्डोमेन कैविटी या पेरिटोनियम जो है आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है? सर्जिकली 2 कैथेटर्स, 2 ट्यूब्स को इंसर्ट कर दिया जाता है, और उन ट्यूब्स में क्या होता है? एक ट्यूब से डायलिसेट को या डायलिसिस फ्लूइड को एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंटर किया जा रहा होता है, और दूसरी ट्यूब से वो जो डायलिसेट है या डायलिसिस फ्लूइड है वो लीव कर रहा होता है हमारी एब्डोमेन कैविटी को।
During circulation, when blood passes through the blood vessels, capillary network within the peritoneum, the dialysate attracts certain molecules to cross the membrane into dialysate. क्या किया जाता है, जब सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है ब्लड वेसल्स में जो पेरिटोनियम के अंदर मौजूद हैं ब्लड वेसल्स, तो डायलिसेट क्या करता है, जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. फाइन. डायलिसेट को पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है. पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जो भी कैपिलरी नेटवर्क होता है, उनके अंदर ब्लड तो डेफिनेटली मौजूद होगा. फिर ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो डायलिसेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे. इस तरह की डायलिसिस को हम घर पे कर सकते हैं बट इट शुड बी डन एवरी डे, लेकिन वो डेली करना पड़ता है. फाइन. अब देखें, लुक एट दिस पिक्चर. ये एक डायलिसेट बैग है, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है. ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी और ये ह्यूमन बॉडी की क्या एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, यहां पर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है. अब क्या किया जाता है, ये जो डायलिसिस फ्लूइड है या जो डायलिसेट है इसको एक कैथेटर के थ्रू इस बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है. फाइन. ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर का नजर आ रहा है ना, दिस इज द डायलिसेट और द डायलिसिस फ्लूइड. जब इसको एंटर किया जाता है तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में क्या होती है, मैंने आपको बताया बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज नेटवर्क है इसके अंदर. तो जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है. उस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ये डायलिसेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो डायलिसेट में शामिल हो जाते हैं. फिर ये डायलिसेट एक दूसरे कैथेटर के थ्रू एक दूसरे ड्रेनेज बैग में कलेक्ट होता जाता है. जो वेस्ट मटेरियल वाला डायलिसेट होता है, डायलिसिस फ्लूइड जो यूज हो चुका, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, वो कैथेटर के थ्रू एक दूसरे ड्रेनेज बैग की तरफ क्या हो जाएगा, पोर होता जाएगा उसमें. ठीक है, देखें इस बैग के अंदर ये यहां से पोर होता जाएगा. यहां से फ्रेश डायलिसेट इंसर्ट होता जाएगा और ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उस डायलिसेट में शामिल होता जाएगा और देन ये यहां से लीव करेगा डायलिसेट, डायलिसिस फ्लूइड जो यूज हो चुका, और इस बैग में जमा होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा. फाइन. लुक एट हियर. देखें, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द पेरिटोनियल स्पेस. अब देखें, ये डायलिसेट था, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसको इंसर्ट किया गया. ये आपके पास ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये जो ट्यूब नजर आ रही है, ये समझ लें क्या है, हमारे पास कैपिलरी है. ठीक है, ब्लड कैपिलरी है. ये आरबीसीज आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, और ये जो ब्लू कलर के हैं, दीज आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, इसके यहां से ब्लड कैपिलरीज से ये जो वेस्ट मटेरियल है ब्लू कलर का, देखिए आपको नजर आ रहा है, ये क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को. ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू ये यहां से क्रॉस करेगा और ये किस में आ गया, डायलिसेट में आ गया या डायलिसिस फ्लूइड में आ गया. फिर ये जो वेस्ट जिसके अंदर था डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ये जो वेस्ट है, अब ये वाला फ्लूइड जो है ये इस बैग के अंदर कलेक्ट होता जाएगा. यहां से न्यू फ्लूइड एंटर होता गया और लीव किसने किया, जो यूज हो चुका था. फाइन. ये सारा जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस. इट कैन बी डन एट होम बट शुड बी डन एवरी डे. डेली, रोजाना करना पड़ेगा, घर पे किया जा सकता है. ठीक है. नाउ सेकंड इज द हेमोडायलिसिस. Hemodialysis removes waste and water by circulating blood outside the body through an external filter called the dialyzer, which consists of tubes of सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हीमोडायलिसिस में ऐसा नहीं होता कि हम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड को एंटर करें और उसको फिल्टर कर सकें. हेमोडायलिसिस में क्या होता है, वेस्ट वाटर या यूरिया, जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फिल्टर करने के लिए एक मशीन यूज होती है विच इज नोन एज डायलाइजर. डायलाइजर के अंदर क्या होता है, ट्यूब्स मौजूद होती हैं. ये जो ट्यूब्स होती हैं इनकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टिव आयंस को ही वो अपने अंदर से गुजरने देती है. राइट. A catheter is inserted into the blood vessel, usually in the arm. It routes the blood circulation externally through a machine that removes the waste. इसमें क्या किया जाता है, एक कैथेटर को हमारी आर्म की ब्लड वेसल के अंदर एंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. फिर जो ब्लड होता है वो किस में आ जाता है, इस डायलाइजर में आ जाता है, मशीन में आ जाता है.
द क्लेंस्ड ब्लड देन रिमूव्ड और रिटर्न टू द बॉडी थ्रू अ सेकेंड कैथेटर। फिर जब ये डायलाइजर उस ब्लड को क्लीन कर देता है तो दूसरे कैथेटर के थ्रू वो हमारे वेन के अंदर वापस दाखिल हो जाता है, एडमिट कर दिया जाता है या इंसर्ट कर दिया जाता है। फाइन। एक दूसरी वेन के अंदर कैथेटर, सेकंड कैथेटर के थ्रू जो ब्लड साफ हो चुका होता है वो एंटर होता रहता है। दो कैथेटर्स यूज होते हैं, एक कैथेटर के थ्रू जो ब्लड प्यूरिफाइड नहीं होता, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद है, वो पेशेंट की बॉडी से किस में जा रहा होता है, डायलाइजर में जा रहा होता है। डायलाइजर ब्लड को क्लीन कर रहा होता है, फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है जिसमें कोई वेस्ट मटेरियल मौजूद नहीं होता वो पेशेंट में वापस रिटर्न हो जाता है with the help of a second catheter. Fine. The hemodialysis machine consists of a pump and a container in which a network of synthetic tubes made up of cellophane membrane called the dialyzer is situated. देखें जो हेमोडायलिसिस मशीन है उस मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पंप मौजूद होता है, टॉप पर एक पंप मौजूद होता है जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह। उसकी एक बॉडी होती है, एक कंटेनर होता है, उस बॉडी या कंटेनर में कुछ सिंथेटिक ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन और ये सेमी परमिएबल होती हैं ये ट्यूब्स। फाइन। इसको हम क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। द ब्लड मूव्स इनटू द ट्यूब्स ऑफ डायलाइजर फ्रॉम द टॉप थ्रू ब्लड पंप। देखिए जो ब्लड है वो पेशेंट में से मूव कहाँ करता है, डायलाइजर में। वो पेशेंट से कहाँ आता है, डायलाइजर में आता है। डायलाइजर के ऊपर एक ब्लड पंप लगा होता है जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। फाइन। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू डायलाइजर ब्लड लीव्स द मशीन फ्रॉम द बॉटम। जैसे ही ब्लड साफ हो जाता है तो ब्लड उस डायलाइजर को छोड़कर वापस कहाँ आता है, एक ट्यूब के थ्रू पेशेंट के अंदर वापस इंसर्ट कर दिया जाता है। फाइन। एक दूसरी वेन में वो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और ब्लड को वापस बैक टू दी पेशेंट बॉडी इंसर्ट कर दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड पोर इनटू द मशीन फ्रॉम बॉटम। जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होता है वो मशीन के अंदर नीचे एक बैग होता है जिसमें ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। वो उस मशीन में से मतलब बॉटम से आता है। बॉटम पर एक बैग अटैच्ड होता है जहां से फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इंसर्ट किया जाता है डायलाइजर में, विच आफ्टर सर्कुलेटिंग अराउंड द मेम्ब्रेन्स ट्यूब्स लीव द मशीन फ्रॉम द टॉप। और जो यूज्ड हो चुका होता है डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसेट वो मशीन के टॉप से लीव कर देता है डायलाइजर को। ठीक है, आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। The dialysate attracts certain substances, minerals, electrolytes and waste byproducts to cross membrane from the blood. Dialysate क्या करता है, इन ट्यूब्स के अराउंड मौजूद होता है जो डायलाइजर मशीन के अंदर मौजूद होती हैं। तो डायलिसेट क्या करता है, सारे वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जो भी मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिया, जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में मौजूद है वो उन सब वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। द डायलिसेट एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस, ये सारी इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। हियर इज द पिक्चर, देखें इसको। पेशेंट है, देखें पेशेंट में ये दो कैथेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये कैथेटर है, एक ये कैथेटर है। तो ये जो ऊपर वाला आपको कैथेटर नजर आ रहा है, इस कैथेटर के थ्रू पेशेंट बॉडी का जो ब्लड है वो किस में आएगा, डायलाइजर में आएगा। एंड दिस इज द डायलाइजर। ठीक है, ये डायलाइजर है। तो ये यहां से कहाँ आ रहा है, इस डायलाइजर में आ रहा है। और ये जो पंप है ये कंट्रोल कर रहा है ब्लड के फ्लो को। ठीक है, ये जो पेशेंट का ब्लड जब डायलाइजर में आ गया तो डायलाइजर में क्या मौजूद है, ये डायलाइजर की ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं लाइट पिंक कलर की, दीज आर दी ट्यूब्स। और ये सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, सेमी परमिएबल होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको डायलाइजर के अंदर नजर आ रहा है, दिस इज द डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसेट है या डायलिसिस फ्लूइड है। और ये देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ एक बैग होता है या एक बोतल होती है जिसके थ्रू फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इस डायलाइजर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यहां से फ्रेश ये फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसेट इसके अंदर एंटर होगा और जो यूज होता जाएगा वो यहां से टॉप से देखें इसको लीव कर रहा है और एक अदर बोतल है जिसके अंदर वो कलेक्ट होता जा रहा है। इस ब्लड जब यहां पर आएगा इन ट्यूब्स के अंदर तो देखें ये सेमी परमिएबल है ट्यूब्स, इसके अराउंड ये क्या मौजूद है, डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है।
तो इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, वाटर है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो सब इस डायलिसेट में आते जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में आते जाएंगे, और जो ब्लड प्यूरिफाई होता जाएगा वो इस डायलाइजर को छोड़ेगा और ये इस दूसरे कैथेटर में आ जाएगा और यहाँ से ये देखें दूसरी वेन के थ्रू पेशेंट बॉडी में वापस इंसर्ट कर दिया जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर देखें, ये आपको ये जो ट्यूब है ना, इस छोटा सा इसका एक हिस्सा दिखाया हुआ है, ये जो डायलाइजर के अंदर ये जो ट्यूब्स मौजूद हैं। ब्लड विद द वेस्ट प्रोडक्ट, ये देखें इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड होता है जिसके अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है, दीज आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर सपोज। फाइन। अब ये क्या है, डायलिसेट है जो इन ट्यूब्स के अराउंड मौजूद है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। ये डायलिसेट में सारा का सारा ये जो वेस्ट मटेरियल है ये सेमी परमिएबल को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलिसेट में आ जाएगा या डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा कहाँ आ गया, डायलिसेट में आ गया या डायलिसिस फ्लूइड में आ गया। इस तरीके से ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो डायलिसेट जो यूज हो चुका है वो वापस इस बोतल में कलेक्ट होता जाएगा, फ्रेश डायलिसेट एंटर होता जाएगा और यहाँ से जो ब्लड प्यूरिफाइड हो चुका है इट विल रिटर्न टू द पेशेंट बॉडी विद द हेल्प ऑफ अनदर कैथेटर। ठीक है, तो ये पेशेंट बॉडी के अंदर आ जाएगा एक और कैथेटर की हेल्प से। सो ये जो था, ये क्या प्रोसेस था हमारे पास, हेमोडायलिसिस था। फाइन। नाउ कम टूवर्ड्स द रिव्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कॉजेज पढ़े हैं किडनी फेलियर के, और बल्कि क्रॉनिक और अक्यूट किडनी फेलियर के अलग अलग कॉजेज पढ़े हैं। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज रीनल डायलिसिस। रीनल डायलिसिस क्या है, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ रीनल डायलिसिस, जो कि हमारे पास कौन सी हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड hemodialysis. You have to answer these questions and send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. You have to answer these questions and send to me on my email address. Dear students, kindly take a good care of yourself, your parent as well. And देखें ये जो आज का टॉपिक था, it is very informative. तो देखें आप लोग अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एक अच्छी डाइट लें, अपने आप का ख्याल रखें। किडनीज फेल हो जाना, ये जो हमने आज 2 ट्रीटमेंट्स पढ़ी है ना इसकी, एक तो डायलिसिस हमने पढ़ी है, ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दीज आर नॉट ईजी, ये इजी नहीं है, एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। ये देखें ये बहुत महंगी भी हैं ये ट्रीटमेंट, पेनफुल भी हैं ये ट्रीटमेंट्स। तो अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रखें, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें, नॉट फॉर ओनली योर सेल्फ बट फॉर योर पेरेंट्स एज वेल। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।